سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، کیسے بتاؤں کیا کیا، کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا ہے، عشق نبی ملا ہے دل پھول سا کھلا ہے، عشق نبی ملا ہے دل پھول سا کھلا ہے، مسلک میرے رضا کا، مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، کیسے بتاؤں کیا کیا، کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایسی خرابیاں معاشرے میں آ گئی ہیں، باہر ملکوں میں تو اسلام کا نام لیتے ہیں جی بیچارے، بہت بری حالت ہے۔ اب ان سب کو اگر ہم یہ حلیہ دیتے کہ یہ تم کو کرنا پڑے گا، صحیح بولتا ہوں کہ ہم کو دیکھ کر گلی بدل دیتے ہوں گے یہ کہ یار یہ مولانا ابھی گلے پڑے گا میرے، معاذ اللہ۔ اتنی بری حالت ہے کہ اب باہر ملکوں کے کیا رونا ہے، اپنے یہاں کام مطلب گھر والے کون سا داڑھی رکھنے دیتے ہیں، ایک بندہ داڑھی رکھتا ہے تو خدا جانے کتنے مراحل، کٹھن مراحل سے گزر کے بیچارہ وہ داڑھی سجاتا ہوگا، ماں الگ بپھر رہی ہے، باپ الگ شور مچا رہا، بڑا بھائی، بڑی بہن، خاندان، رشتہ دار، یعنی یہ میرے پاس اس طرح کے کیسا ہیں، بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی، ہمارے گھر والے بولتے ہیں یہ تم کو کیا ہو گیا، تم مولانا بن گئے، بہت سخت مقابلہ ہے۔ تب داڑھی تو واجب ہے، اس میں رعایت ہم دیں تب بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، کہ ایک مٹھی۔ امامہ شریف سنت ہے اور یہ سنت موقدہ بھی نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اب اس مستحب عمل کو ہم اس کی وجہ سے پورا بندہ جا رہا ہو، پورا خاندان گالیاں نکال رہا ہو، یہ کیا کریں یار، یہ معاشرہ ایسا عجیب ہو گیا ہے۔ حوصلہ افزائی تو کوئی کوئی کرتا ہے، باقی ایسے طنز کرتے ہوں گے وہ داڑھی کو اور امامہ شریف کو، اور کیا کیا یہ کرتے ہوں گے یہ لوگ کیا۔ تو اب چونکہ ہماری تو یہ کہ ایک طرح سے ایمان بچاؤ تحریک ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم امام میں شریف کے رنگ اور چادر کے لیے مطلب ہم اپنے بندے ضائع کرتے ہوں۔ صاحب بھائیوں کیا بھروسہ یار، بگا دیتے ہوں،
उसको इसी यानी कि टोन करते हो, हंसते हो, तंज करते हो, बेचारा दिल बर्दाश्त होकर भाग जाता हो। तो उन सबको मना के लिया। सख्तियां तो पहले भी नहीं थी, तरगीब है। बेनमाजी पर सख्ती नहीं करते यार, शराबी कबाबी पर सख्ती नहीं करते, जुआड़ी पर सख्ती नहीं करते, सबको आने देते हैं। तो अब इमामा का रंग अगर अलग है तो क्यों उस पर सख्ती करने लगे? मेरा सवाल ये है कि हम 3, 4, 5 को काफिले में गए थे इत्तेहाद कॉलोनी से। हम अमी तुम्हारे लगे बालूबाशी, हम बंगाली हैं। माशाअल्लाह। तकरीबन 155 के करीब हम निकले थे वहाँ से। सेवन शरीफ। जी जी, अच्छा सेवन शरीफ की जियारत करके निकलेंगे दादू में। अच्छा, दादू में क्या खुसूसियत? नहीं दादू, हम उधर फैजान मदीना काफिले में गए थे। फैजान मदीना उधर मैं माशाल्लाह सुन्नत मुबारक रख रहा हूँ, दाढ़ी माशाल्लाह। माशाअल्लाह। नमाज मैंने उधर से आके नहीं छोड़ा मैंने अभी तक। मेरे आका आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान से जब मदरसा मंजरुल इस्लाम बरेली शरीफ हिंद के एक तालिब इल्म ऐनुल यकीन ने इमामा बांधने का मसनून तरीका पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर बात में दाहनी यानी सीधी तरफ से इब्तिदा को पसंद फरमाते हैं, यहाँ तक कि जूता पहनने में। लिहाजा मुनासिब ये है कि इमामे का पहला पेच सर की दाहनी जानिब जाए। हज़रत इमाम इब्ने हजर मक्की शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी अपने फतवा में अल्लामा इब्नुल हाज मालिकी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी के हवाले से लिखते हैं कि इमामा बांधने में दीगर सुन्नतों का भी इल्तिज़ाम किया जाए, जैसे सीधी जानिब से शुरू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, लिबास की दुआ पढ़ना, नीज़ इमामे की मुताल्लिका सुन्नतों मसलन तहनीक, शिमला छोड़ना और 7 हाथ या इसके बराबर होना। बस लाजिम है कि शलवार बैठकर पहनो और इमामा खड़े होकर बांधो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी तहनीक फरमाया करते थे। इसकी सूरत यह कि शिमले को बाईं जानिब से ठोड़ी के नीचे से निकाल कर दाईं जानिब इमामे में अटका लेना। तो शिमला जो है ये बाईं जानिब से लेफ्ट साइड से यूं निकाल के ठोड़ी के नीचे से ठोड़ी निकाल के यहाँ उड़स लेना, यहाँ से शिमले को निकाल के जी ये तहनीक ये भी मतलब है सुन्नत, लेकिन मशवरा ये है कि घर की 4 दीवारी में कभी सुन्नत की नियत से बंदा कर ले। अम्मी अब्बू की भी समझ में आएगा नहीं कि तुझे इसलिए दावत इस्लामी में भेजा था तो ये लेके बैठा है, फिर ये कि खामा खा बेचारे उस सुन्नत की बेअदबी करने वाले ना बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाक मदनी काबीना ड्रिक कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल 2017 में हमारे माशाल्लाह मुशर्रफ भाई आरिफ बापू और दीगर इस्लामी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 मसाजिद ड्रिक कॉलोनी मतलब पाक मदनी काबीना में बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह तामीर हुई है जी, तामीर हुई है, ली गई और माशाल्लाह 14 और 2 मज़ीद अभी जगह की ख़रीदारी की तरकीब बनी है। माशाल्लाह पिछले हमारी जो फरवरी के मदनी काफ़िले की तरकीब बनी उसमें माशाल्लाह तकरीबन 1100 इस्लामी भाइयों ने मदनी काफ़िले में सफ़र किया। आज माशाल्लाह तकरीबन 1600 के करीब इस्लामी भाई माशाल्लाह इस मदनी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ लाए और आपसे ड्रिक कॉलोनी के इस्लामी बहुत मोहब्बत करते हैं। खुसूसी के लिए ये 1600 आए हैं जी, आए जी बापा, टोटल कमोश तादाद ये है। और माशाल्लाह बड़ी रात को भी आपका इंतज़ार सारी रात 12वीं की रात कहाँ किया? इस्लामी भाई ड्रिक कॉलोनी में पहले हाँ हाजिर हुआ हूँ मैं। बड़ी रात का इज्तिमा जिक्रोना तो वहाँ हुआ था, किसी कोई छत थी मार्केट की गालिबन उस पर हुआ था बापू। अच्छा सजावट में इस बार भी वो इंतजार कर रहे बापा हैं। सारी रात इस्लामी भाई माशाल्लाह मतलब कई एक तादाद थी जो जाग रही थी। पिछले साल तो कर्म हुआ था, इस साल इस्लामी भाई इंतजार करते रहे। और अब जो इंशाल्लाह 23 मार्च आ रही है इंशाल्लाह पूरी ट्रेन हम शहदादपुर ले जाने की इंशाल्लाह इरादा है। आप खुसूसी दुआ फरमा दें। माशाअल्लाह
शेदातपुर मदनी काफिला जाएगा आपका इंशाल्लाह। सुभान ये माशाल्लाह इस्लाम भाई आए हुए भी हैं, माशाल्लाह नियतों का इजहार भी कर दी इस्लाम भाई, माशाल्लाह खुसूसी करम फरमा दे, निगाहें करम फरमा दे, माशाल्लाह खुसूसी दुआ फरमा दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सब मदीने चले जाएं, करम फरमा दे। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको मीठा मदीना दिखाए, सुभान आमीन आमीन। हर माह मदनी काफिले में सफर भी करते रहे। तो कासिम भाई हमारे अमीर काफिला भी रह चुके हैं। हाजी कासिम तो बहुत पुराने एक्टिव। सुबह 10:30 बजे से आपके दीदार का मुंतजिर था मैं ओहद के पहाड़ के बराबर मेरा कर्जा हो गया है। अल्लाह लोग मेरी जान के दुश्मन हो गए हैं। मैं सुबह घर से निकला था अपने आप को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कदम आपकी तरफ, आपके कदम मुबारक की तरफ आ गए मेरे। मदनी पंचसूरे में लिखा कि अगर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा तो अदा हो जाएगा, तो कोई न कोई असबाब इंशाअल्लाह हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ता हुसूल मुराद हर नमाज के बाद 11 बार और सुबह शाम 100 बार रोजाना। जबल उहद की मिसाल नहीं देनी चाहिए कि मुझे जबल उहद जितना पहाड़ है, जबल उहद ये जन्नती पहाड़ है, ये पहाड़ जितना कर दे, ये मुहावरा सही है। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए और बस मैं अल्लाह आपकी मुश्किल आसान फरमाए। आप मशवरा दें, मैं घर जाऊँ। हाँ बेटे, खुदकुशी जो है ना, ये तो मसले का हल ही नहीं है। जान इससे छूटती नहीं, जान फंसती है। मतलब रोज रोज मरने से बेहतर आदमी यही सोच रहा नहीं, है। वो रोज मरना और इस मरने में फर्क है। हराम होते हैं ना, अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाज़ मसाजिद होती हैं कि उनके सफ़ों के दरमियान में चंद पिलर होते हैं जिसकी वजह से क़त्अ सफ़ हो रही होती है। ऐसी सफ़ों के दरमियान में, यानी सफ़ है, 2 पिलर हैं, उनके दरमियान में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है? अपनी तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं जब तो कोई मसला नहीं है। इमामत यानी जमाअत में ये है कि अगर मस्जिद पूरी भर गई है या मस्जिद में जगह तो है लेकिन सख्त धूप, सख्त बारिश, इस तरह की रुकावट है, तब तो पिलरों में खड़े होने में हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद में और जगह बाकी है, तो अब इस तरह पिलरों में खड़ा होना कि सफ़ कट रही हो, ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ व गुनाह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, आपसे अर्ज़ है, ये आपके बैठने के लिए सीढ़ी का एक स्टेप क्यों लगा है? छोटा था ना, 6 सीढ़ियों पर एक चौक था हमारे पुराने घर में। जब छोटा था वहां से छलांग लगाता था, अपनी माँ को बताता, माँ देखो। अब पोजीशन है कि एक टप्पा नहीं चढ़ा जाता। मैंने इनको कहा यार तरकीब करो, ये 7 अगर आप भी जिंदा बच गए तो आने वाली है, इसलिए अभी से तैयारी कर लो। अभी आप उछल कूद कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, तो दीन के लिए भाग दौड़ कर लो, वरना मेरी तरह पाँव तोड़ के बैठ जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। थका मांदा है वो जो पाँव अपने तोड़ कर बैठे, थका मांदा है वो जो पाँव अपने तोड़ कर बैठा, वही पहुंचा हुआ ठहरा जो पहुंचा कुएं जाना में। ज़ौफ़ माना मगर ये जालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका न करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझसे सवाल अर्ज़ ये था कि नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में जो सीधा पाँव है उसके बाज़ों का तो लोग जो है खड़े खड़े जो है वो उससे खेलते हैं, उंगली यूं करते हैं, तो यूं करना या उस जो सीधा पाँव है उसको हटाना, आगे पीछे करना, इसका क्या हुक्म होगा नमाज में? पाँव हटाएं तो क्या हुक्म होगा, अंगूठा हटाएं तो क्या हुक्म होगा? मशहूर तो यही कि सीधे पाँव का अंगूठा ना हटाया जाए, ये मशहूर है अवाम में। तो ऐसा मसला नहीं है, पाँव अगर हट गया, हिल गया, हाँ बिला वजह से इसको हरकत देते रहना बाद लोगों की आदत होती है, उंगलियां और यूं ऊंची नीचे करते रहते हैं। ये शायद 99.9 इब्तला है, बिला ज़रूरत की उंगलियों को
जो हरकतें देते रहते पाँव की, ये अबस है, अबस। और ये अबस जो होता है, जो बिला ज़रूरत किया जाता है, ये ग़ालिबन फ़ताह रज़विया शरीफ में इसको मकरूह तंज़ीह लिखा है, नापसंदीदा। और इससे तो न इमाम खाली होता है, न मुक़्तदी खाली होता है। मैं तो ज़माने से समझाता आ रहा हूँ ये मसला, लेकिन आदत ऐसी पक्की हो चुकी है लोगों की। एक तो ये करते हैं, दूसरा ये जब बैठते हैं कादे में जाएंगे तो यूं कपड़ा उठाएंगे, यूं करते हैं। ये बहुत की आदत होगी, यूं करके यूं सेट करेंगे बिला ज़रूरत। अत्तहियात में बैठेंगे या दो सज्जों के दरमियान बैठते हैं तब भी यूं उठा कर करेंगे। यानी बिल मुशाफा मैंने कईये को समझा कर देखा है, आदत नहीं जाती, हाथ उठ ही जाता है। याद भी आ जाता होगा कभी तो बच जाते होंगे, तो ये भी मकरूह तंज़ीह। मगर इससे बड़ा खतरनाक मसला है कि दो सज्जों के दरमियान बैठते नहीं है सही। सुबहान अल्लाह की कदर सही बैठना ये वाजिब है। एक सुबहान अल्लाह कहने इतनी मिकदार, यूं नहीं सुबहान अल्लाह तो ये रास्ते में भी हो जाएगा, लेकिन बैठना, अब अल्लाह अकबर जलसे में बैठ गए, दो सज्जों के दरमियान बैठना जलसा कहलाता है। जलसे में बैठ गए ना जब पूरे यूं, अब एक सुबहान अल्लाह की मिकदार रुकना है, बस ये हरकत जारी होती है। एक तादाद है जो ये वाजिब तर्क करती है। ये भी समझा समझा के देखा, लेकिन आदत इतनी पुरानी पक्की हो जाती है कि ये छूटती नहीं। कई रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, ये बेचारे नहीं खड़े होते, रुकू के खड़े हुए फौरन सीधे हुए बगैर चले जाते हैं सजदे में। रुकू के बाद सीधा खड़ा होना ये भी वाजिब है। अल्लाह करीम तौफीक दे। इसी तरह सजदे में जाते हैं तो दोनों पाँव बिल्कुल ऊपर कर देते हैं, तो इसका क्या? हाँ, फ़ताह रज़विया शरीफ में लिखा है कि हर पाँव की अक्सर उंगलियों का पेट ज़मीन पर जमा होना वाजिब है। अच्छा, फिर सुन्नत 10 है, 10 उंगलियां जिनको मसला पता था उनकी भी कम ही लोगों की लगती है मेरे ख्याल में। जो बहुत तवज्जो देगा तो लगेगी। आप लगाएं और दूसरे को बताएं कि ये लगी कि नहीं लगी, या खुद गौर कर लें हाथ वगैरह से ये लगती है कि नहीं लगती। 10 कभी ये छोटी उंगली उठ जाती है, कभी अंगूठा आगे पीछे हो जाता है। इसके लिए पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। इन चीज़ों को सीरियस लेंगे कि मुझे ये करना है, मेरे वो सही करना है तो सही होगा, वरना तो पता नहीं जब होश आएगा तो जिंदगी भर की नमाजें दोहराएंगे कैसे। तो मकरूह तंज़ीह में तो दोहराना वाजिब नहीं है, लेकिन मकरूह तहरीमी में दोहराना वाजिब है। जैसे वो दो सज्जों के दरमियान का मैंने बताया कि जलसा अगर गलत किया, एक तर्क वाजिब हुआ उसमें, तो नमाज दोहरानी पड़ेगी ना। भूल कर हो गया तो सज्दे सब उसी वक्त कर लिया तो हो जाएगी, लेकिन मसला पता नहीं था इसलिए ऐसा किया तो ये भूल कर नहीं हुआ, बल्कि सीखा क्यों नहीं। ये नमाजें वाजिब याद होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैर। अब आप भी तो ऐलान कर दो 12-12-12 माह इस तरह। दो हदीस शरीफ से फारिग हुए, सुभान अल्लाह। फिर तो एक 12 माह शुक्राने के दे दें, चलो जो देना हो दे दें। इंशाल्लाह हर जुमेरात को पाबंदी के साथ इज्तिमा में इज्तिमा माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में आते रहते हैं। कभी कभार मबाद सुरजानी में रहते हैं, तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ। तो होगा घर में सुजुकी आती है। और बोलो इंशाल्लाह नियत करते हैं इसके बाद। मैंने मदनी बहार बनानी थी अपनी। मैं 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान था अपने वीज़े के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा वज़ाइफ किए थे, मुझे मालूमात हुई थी कि वीज़े में क्या रुकावट है। उस रुकावट की वजह से मेरा वीज़ा नहीं लगा, तो मेरे बच्चों की अम्मी ने मुझे बोला 3 दिन के काफ़िले में जाएं। बुध की रात मैंने 1 बजे काफ़िला का अहद किया है, नियत करिए, तो दूसरे दिन 11 बजे मेरे ऑटोमेटिक वीज़ा आ गया। माशाअल्लाह। तो नज़र करम फरमाइएगा। हाँ, तो वो 3 दिन से भी 30 हुए, 12 माह हुए, 25 माह हुए, क्या हुआ? क्या
3 दिन का काफिला ऑलरेडी फैजान मदीना में कर रहा हूँ। वो तो 3 दिन तो बढ़ने चाहिए ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ना आपको भी अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, इंशाल्लाह दूसरे दिन आ जाएगा ये तो। मेरी फ्लाइट अभी मंगल या बुध की है, मैं इंशाल्लाह जब आऊँगा तो इंशाल्लाह पूरे 12 दिन का काफिला करूँगा। इंशाल्लाह। नज़र करम फरमाइएगा, दुआ करिएगा। सल्लु अलल हबीब। सलातुन तस्बीह इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं तो क्या मुक्तदी को भी क्या तस्बीहात पढ़नी पड़ेगी? क्या पढ़नी पड़ेगी? है सलातु तस्बीह, तस्बीह की नमाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस शेर का फिर मतलब क्या है कि उनके तो फ़ैल हज भी रब ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। जब आला हज़रत हज के लिए दोबारा गए ना, तो फिर जो कोई पूछता था उसको कहते थे कि मैं मदीने जा रहा हूँ। अब शेर ये है, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नहज़त किधर की है। किसी ने पूछा कहाँ चले? मदीने। ये नहीं कहा कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। ये गालिबन आला हज़रत के दूसरे हज का है, पहले हज का नहीं है ये। तो यूं मतलब फिर आगे है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज भी नसीब हो गए, तो मेरी असल मुराद तो इनकी बारगाह की हाजिरी है। बाकी होते कहाँ खलील बना काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। ने अगर आप ना होते तो इब्राहिम खलीलुल्लाह भी पैदा ना होते, न काबा होता, न मीना शरीफ का वजूद होता। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की, सब कुछ आपके ही सदके और तुफैल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल ये है कि सुनते हैं ये कौल के जो असर के बाद सोए तो उसकी अकल जाने का अंदेशा है, अगर चली जाए तो वो अपनी तरफ ही उसको मुलामत करे। तो ऐसा भी सुना है कि जो तालिब इल्म दीनी कुतुब पढ़ते हैं असर के बाद, क्या उनके मुतालिक भी ऐसा है? ये तो हदीस शरीफ है असर के बाद सोने की मुमानत वाली, और ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ वो मंसूब है ना कौल कि असर के बाद आप मुताला नहीं फरमाते थे, और फरमाते बीनाई कमज़ोर होने का अंदेशा है, असर के बाद मुताला करने का। ये शायद हयात आला हज़रत में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमा दें, जो शख्स झूठ और फ्रॉड करे और बोले इस्लाम का काम है, तो ऐसे के बारे में क्या हुक्म है? एक शख्स गुनाह करता है, लोगों ने उसे मना किया, तो कहने लगा इस्लाम का काम इसी तरह करना चाहिए। यानी जो गुनाह व मासियत को इस्लाम कहता है वो काफिर है। फ्रॉड के जरिए, धोखे के जरिए इस्लाम का काम नहीं होता। इस्लाम का काम इस्लाम पर अमल करके होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने कितने हज किए हैं और मैंने भी हज करना है, कोई वजीफा बता दें। आपको हज करना है? हाँ जी, बड़ी ख्वाहिश है। बेशक। किस किस की हज करने की ख्वाहिश है? माशाल्लाह। आपने कितने हज किए हुए? माशाल्लाह। मैंने कितने हज किए? हाँ जी। अल्लाह जानता है कितने किए। आपको पता तो होगा ना? सही बात करे, कैसे हो सकता है कि पता ना हो, लेकिन मैं अजूबा हूँ दुनिया का, मुझे पता नहीं है मैंने कितने हज किए। माशाल्लाह। न बोलो तो कसम खाने के लिए तैयार हूँ, न अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं है कि मैंने कितने हज किए। माशाल्लाह। और बोलो। बड़ी सआदत है माशाल्लाह जी। जी बड़ी सआदत है आपकी। इसमें क्या सआदत है? पता नहीं है ना कि ऐसा बुलक्कड़ आदमी भी साथ। आप नेकी करके छुपाते हैं माशाल्लाह। नेकी लो, छुपाना तो कब होता कि जब मैं कहता कि मैंने हज ही नहीं किया। हाँ जी। तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हज नहीं किया, मैं तो अल्लाह लेलान जाता था हज के लिए। जरा कि आप ये
अब तो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें सोशल मीडिया नहीं था, वरना तो क्या क्या उसमें तबसरे होते, तनकीद होती है ना, अपना जो जाने का अंदाज होता था वो भी निराला होता था। अब तो बस अल्लाह करे कि फिर कोई सी सूरत बन जाए कि हाजिरी हो जाए। अब सोशल मीडिया मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वहाँ तवाफ के अंदर भाग भाग के आएंगे और सेल्फियां ले रहे होंगे वहाँ कि मैं इलियास के साथ तवाफ कर रहा हूँ शायद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार